Hello everyone. Let's start with comparative comparative politics. As the name suggests, this is a politics. This is politics. Why? Because see भाई, why are you going to do comparison? ये करोगे क्यों? Comparison कोई करेगा क्यों? IIT JEE Joint Entrance Examination for IIT. Now this is a very tough exam to beat. People say, है ना? And everybody in India go for it at least once, twice. Many people 3 times they write. Now I think only 2 times it is allowed. But still, you see what this exam is all about, or any exam is all about. They are just evaluating two people. Let's say this is candidate number one, and this is candidate number two. Ab bhai, if you have one seat, so you are going to do something. You have to figure out a method. You have to figure out a method or methodology so that you can allot this seat to the rightful candidate, okay, who is the most deserving. But instead of deserving, now this is a term that we use in family and society, deserving. You must be deserving. But think about it, is it about deserving, or is it about the lack of seat that is available to the both student who want to study at the same college, right? So although this is a societal term, deserving, what really is happening is you are basically comparing the two candidates so that you can allocate the seat to the most, let's say, the person who wins whatever the parameters you have set for your comparison. Okay, and you believe this to be a very efficient way. Now what we are doing to do in comparative politics, obviously we are going to do something on very similar grounds. How? Let's say this is India and this is Pakistan. Now what you are allocating? You are allocating nothing. What you are doing is politics. And for politics you need to make the other person believe into what you believe. Okay, you have to establish a consent into your ideology or whatever you want people to give you support in. Now how do you do that? How do you manage that? So what you will come up with is this tool, and you will say कि भाई see, India is very very economically good. ठीक है, it is doing good, at least not in inequality sense, but at least in total output in GDP. You can say India is doing very very good compared to Pakistan. Pakistan is not doing good in economy, right? Then you will say कि ओहो ठीक है, on this parameter, what is the parameter number one? On parameter कि भाई इकोनॉमी कैसी चल रही है, मैं इंडिया विन. ठीक है. Now think from a person who is Pakistani. Now you are a Pakistani, let's say politician or whatever you are. You are, let's say, political scientist there. Now you want to make Pakistan at par with India. ठीक है. So you will need to give certain, let's say, you need to give certain policy, let's say, direction to take Pakistan to a, let's say, road on a path so that it becomes like India. Now how are you going to approach that? How are you going to solve that? तुम्हें कैसे पता what you have to do, which policy you have to adapt? So what you will do is you will start comparing again further. How? You will say कि भाई in India the culture is very very diverse, ठीक है, but in Pakistan also we have the same culture. ठीक है, it is not, it is very different culture. They also speak Hindi, they also eat roti, they are also eating chapati. So it is the same culture, it is not very diverse. ठीक है, there also Urdu is very let's say beautifully spoken and admired. Here also if you go Lucknow or any place in north, you see the appreciation of Urdu even in our cinema, Bollywood, Javed Akhtar साहब, right? So understand what you are going to say. यहाँ पे you are not same, यहाँ पे you are same. Therefore culture तो भैया is not a चीज़ जिस पे यू आर गोइंग टू गिव अ पॉलिसी डायरेक्शन. वाई? बिकॉज यहाँ पे तो दोनों सेम है, इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. देन वॉट इज़ द अनदर थिंग दैट यू कैन कंपेयर ऑन? सो यू कैन कंपेयर कि भाई लेट्स से
in on defense budget how both are doing. So bhai on defense if you will compare, both are doing almost same. जितना उनका बजट एलोकेशन परसेंटेज होता है, दे आर ऑलमोस्ट सेम. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ स्पेंडिंग मोर, इट इज़ स्पेंडिंग मोर, नथिंग लाइक दैट. देन वॉट एवर वॉट एल्स यू कैन थिंक अबाउट, you can say कि भाई let's think about now how the governance is approached there. So in India we see democracy, ठीक है, republican nature, and in Pakistan you see that the democracy is very shattered. It is not pure democracy, it is more of like army control there, as well as you do not have a continuity in democracy. कभी आर्मी आएगी, कभी इलेक्शन हो जाएगा, कभी आर्मी आएगी, कभी मुशर्रफ आ जाएगा. सो अंडरस्टैंड कि अगर दो चीज़ हैं, नंबर वन और नंबर टू, एंड इनके आउटपुट इज़ डिफरेंट, आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं अगर दो लोगों के, मतलब ये इकोनॉमी में इट इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड, इट इज़ डूइंग वेरी वेरी पुअरली, then what is the reason which differentiates the two person or two object of our study? It will be the thing that is different. क्या डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. यहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे अलग ही है, मतलब इंस्टेबिलिटी, कभी आर्मी कभी नहीं, ठीक है, टू मच रोल ऑफ आर्मी, ब्यूरोक्रेसी. सो यू कैन से कि भाई देन इफ़ सोसाइटी दोनों जगह की सेम है, और geographical area also, both are in same geographical area, it is Indian subcontinent, right? History, they have a shared history, almost same history, both have the history of colonialism, British Raj, right? So what is the difference? We will say कि भाई if Pakistan has to become like India in economic terms, it can start with changing its पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी है उधर, दैट इज़ आर्मी वार्मी छोड़ के. इफ़ यू बिकम डेमोक्रेसी देन ऑल द पैरामीटर्स आर सेम, देयरफॉर द आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट विल ऑल्सो बी द सेम. ये भी अच्छा हो जाएगा फिर, है ना? मेक सेंस कर रहा है? लेट्स ट्राई अनदर. लेट्स से दिस इज़ लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एंड दिस इज़ साउथ कोरिया. लेट्स ट्राई टू कंपेयर दीज टू. कैसे कंपेयर करोगे? यू विल से कि भाई इकोनॉमिक में इफ़ यू विल गो कि भैया कितना पैसा बनाते हो, तो भाई यू आर मेकिंग नन, ठीक है. बट एट द सेम टाइम साउथ कोरिया हैज़ सो मैनी टेक कंपनीज, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. सो इट इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सो ऑन दिस पैरामीटर वी सी कि भाई साउथ कोरिया इज़ विनिंग, साउथ कोरिया हैज़ बेटर आउटपुट. देन व्हाट कुड बी द reason for that? We need to identify it so that we can give the policy direction. मैं बोलूँ कैसे, पॉलिसी डायरेक्शन कैसे दूँ, जो भी दूंगा मैं फॉर नॉर्थ कोरिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड. सो आई विल से कि लेट्स थिंक अबाउट इट. सो व्हाट इज़ द कल्चरल लेट्स से पैरामीटर्स हियर. तो यहाँ पे एवरी वन इज़ कोरियन, यहाँ पे ऑल्सो एवरी वन इज़ कोरियन. सो सेम कल्चर, सेम सोसाइटी स्ट्रक्चर, राइट, नो डिफरेंस इन दिस. देन व्हाट डू यू थिंक? लैंग्वेज वगैरह भी सेम, कोरियन. देन व्हाट इज़ जोग्राफिकल एरिया? जोग्राफिकल एरिया सेम जोग्राफिकल एरिया यू हैव, ठीक है, इधर भी जोग्राफिकल एरिया वही है, इधर भी जोग्राफिकल एरिया वही है, ठीक है. देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑन विच यू विल बेस योर पॉलिसी डायरेक्शन? यू विल से देन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफरेंस होगा, दैट इज़ वाई द आउटपुट इन द इकोनॉमी इज़ डिफरेंट. So what will you say? You will say कि भाई in North Korea there is dictatorship, and in South Korea if you see there is no dictatorship, there is good democratic structure. Therefore this must be the reason जिसकी वजह से इतना आउटपुट में फ़र्क आ रहा है, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम हैं तो. सिंपल बात है, ठीक है. सिमिलरली लेट्स से अगर आप USA ले लो और USSR ले लो, कैसे करोगे उस टाइम पे इन द टाइम्स ऑफ कोल्ड वॉर? हाउ विल यू go about it? So you will say कि भाई इकोनॉमी में it is doing too good, right, too good to be true चल रहा है इनका तो इकोनॉमी. USSR का नहीं चल रहा भाई. रीज़न क्या हो सकते हैं? लेट्स फिगर इट आउट. तो भाई मिलिट्री अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ठीक है. टेक्नोलॉजी वेरी वेरी हाई, लेट्स से सुपीरियर इन टेक्नोलॉजी. दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है. सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे जो सोसाइटी है पूरी कैसी है? लेट्स से
मॉडर्न सोसाइटी, होमोजेनस इन नेचर, ठीक है. डायस्पोरा is coming in USA now, the Indian diaspora and from everywhere. But during Cold War, if you see, homogeneity is there. Everybody white people only from the Western Europe migrated and moved to the United States of America. तो USSR में same similar kind of people, just that they are also homogeneous. They are also all Russians. ठीक है. But you say that USSR also has other ethnicities, so you have other ethnicities also. Let's say somebody is Uzbek, somebody is Tajik, ठीक है. Turkish people, there are lots of Turkish people inhabiting Central Asia. So you will say कि भाई एक तो ये reason हो गया कि there are too many ethnicities here living together in USSR. That is why it has a field of, let's say if Russia is this, then it has a field of its influence around it, nearby it. And what will be the next thing? And you will say कि भैया this is USA is going for a capitalist kind of economic structure and USSR is going for a central structure, ठीक है. The governance system, the polity of the state is here very democratic in nature, ठीक है. Rights पे they give a lot of emphasis, rights in Russia. But if you see, it is dictatorship, party dictatorship to be very exact, ठीक है. Communist Party of Russia, Soviet. Then you will say कि भैया this is the reason why it is showing this much difference. Now if this idea is clear, then you have the basic idea कि भाई comparative politics में है क्या, ठीक है. You have to just eliminate पैरामीटर्स, और कुछ है नहीं. इफ़ आउटपुट जो है वो डिफ़र कर रहा है, आउटपुट दोनों का अगर है, इट इज़ कमिंग डिफरेंट, देन बहुत सीधी सी बात है कि दोनों के अंदर जो भी चीज़ इज सेम और लेट्स से डिफरेंट, आउटपुट अगर दोनों का अलग अलग आ रहा है, ये दोनों के दोनों लेट्स से इट इज़ फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2 बोथ आर राइटिंग UPSC, इसका हो गया सिलेक्शन. सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों 10 घंटे पढ़ते थे, ठीक है. तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ा है सिलेक्शन में. हाउ इज़ द फ़र्क पड़ेंग इन सिलेक्शन? तो भैया ही वॉज मेकिंग हिज ओन नोट्स एंड रिवाइजिंग देम डेली इन दीज 10 hours. He was revising for 1 hour every day. Meanwhile, this person was always going for new material, new books, new sources. So this must be the reason why the output is different. ऐसे नापना है बस. अब क्या करना है इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इनको नाम दे देने हैं. कैसे नाम दे देने हैं? जैसे हम देते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में हैवी नेम्स, ठीक है, ताकि लगे कि हमने कुछ पढ़ा भी है. Cool. So this is how we go about it. So in comparative politics, you have to first identify the nature of it and then the scope of it. तो scope तो तुम now you can analyze कि भाई how big is the scope and what is the reason. तो भाई सिंपल बात है, you can think about it कि कोल्ड वॉर अगर चल रहा है और USA एक ब्लॉक है और USSR एक ब्लॉक है, and because the word comparative politics is including is politics, तो सिंपल बात है, यू कांट गो अबाउट इन द वर्ल्ड एंड स्टार्ट डिक्लेयरिंग कि कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर द बेस्ट. यू कांट, ठीक है, ऐसे मन की कहानियाँ थोड़ी है. सो हाउ विल यू गो अबाउट इट? यू विल मेक ए मैथड, यू विल मेक ए मैथड एंड दिस मैथड एवरीबडी विल, इफ़ अगर कोई बोलेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, देन यू विल से इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक. जबकि ऐसा है नहीं कि साइंटिफिक है. बट एट द टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, लेट्स से, देयर वाज अ वेरी ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ बिहेवियरलिस्ट, ठीक है. ये साइंस का टाइम है. न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है अगर, तो न्यूक्लियर बॉम्ब खुद सोच के देखो क्या है. इट इज़ साइंटिफिक मार्वल. सो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ साइंस. मॉडर्न वर्ल्ड इज़ आइडेंटिफाइड विद साइंस एंड लेट्स से प्रॉपर रैशनैलिटी, प्रॉपर रैशनल्स, ठीक है. ऐसे मन की कहानियाँ नहीं है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई ठीक है, इसलिए डिफ़र है और इसलिए USA इज़ द बेस्ट. एंड इसके लिए स्कॉलर्स विल कम एंड दो स्कॉलर्स विल स्टार्ट गिविंग देयर नेम्स, देयर मेथड्स सम नेम. लेट से ह्यूस्टन आएगा तो वो बोल देगा कि भैया सिस्टम्स अप्रोच है, ठीक है. कोई आएगा, कोई कुछ बोल देगा. फ़र्क कुछ नहीं है, मोटा मोटा आइडिया ये है. अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आगे आ जाएगा समझ, ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट इट.
नाउ ऑब्वियसली एज व्हेन वी डिड एरिस्टोटल, तब हमने एक बात करी थी कि एरिस्टोटल जो था ही वाज रीडिंग 158 समवॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड कंपेयर कर रहा था कि इस देश में क्या है, उस देश में क्या है, इस देश में क्या है. नाउ दिस इज़ ऑल्सो कंपेयरिंग, ठीक है. वो भी बोल सकता है कि अगर एथेंस में ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो पेलोपोनेशिया में ये होता होगा, जिसकी वजह से डिफ़र कर रहा है. बट पॉइंट इज़ कि सब कुछ लिखा हुआ है उसमें. ये एनालाइज क्या कर रहा है? ही इज़ जस्ट एनालाइजिंग द टेक्स्ट. ही इज़ जस्ट एनालाइजिंग द टेक्स्ट. तो दिस इज़ नॉट वेरी, let's say, if you are analyzing the context of the text, think about it, what you are trying to do. You are limiting yourself, पहली बात तो, क्योंकि देर इज़ नो बुक इन द वर्ल्ड जहाँ पे एवरी इशू एंड थिंक अबाउट इट यार. यूपीएससी की सिलेबस की आज तक कैन यू इवन फाइंड अ बुक विच हैज़ एवरी थिंग दैट देर इज़ फॉर द सिलेबस और टू क्रैक द एग्ज़ाम इन वन प्रॉपर बुक? टिल नाउ, after so many years, we do not have that book. So how is it possible that bhai you are able to compare different nation states on the basis of just one textbook? That textbook, if you take even our Indian constitution, it has still not, let's say, there is no comprehensive legislation. Comprehensive legislation, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, फॉर राइट टू इक्वालिटी. If you think about it, even in your Indian constitution there is no comprehensive legislation आज तक for right to equality, जबकि right to equality is your basic fundamental right. बट कुछ है नहीं legislation उसे enforce कराने के लिए. think about it, even today we don't have that. So बहुत सिंपल बात है, दिस मेथड कि भाई एक बुक से नाप के देख लिया दो देशों को और क्या फ़र्क आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये बहुत सक्सेसफुल या फिर बहुत लेट्स से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे पाएगा फॉर पॉलिसी डायरेक्शन, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाऊँगा. क्या किसकी दिक्कत है, राइट? नाउ हाँ, क्या था तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स तो बोली, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोल ही देंगे अरिस्टोटल को. नाउ अंडरस्टैंड, एरिस्टोटल वाली जो हरकतें हैं, किताब नाप ली दो, कॉन्स्टिट्यूशन वन कॉन्स्टिट्यूशन टू, ये हरकतें वो हरकतें, तो दीज टाइप ऑफ लिमिटेड व्यू जो है ना, इसको हम ले जाएंगे ट्रेडिशनल में, कि है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ठीक है, ये कब तक है? दिस इज स्टिल योर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ रहे हैं हम इन द एरा ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, and this is where the politics begin. Why? Up till here there was no politics. क्यों? क्योंकि you were very very, यार प्रोसीजरल नेचर है ना. अगर तुम्हें किताब दो नापनी है, कंपेयर करना है, तो हर चीज़ के बारे में लिख दोगे. इट इज़ लाइक कि मूवी आई करण जौहर की, दिस इज़ करण जौहर मूवी 1, दिस इज़ करण जौहर मूवी 2, एंड यू आर द क्रिटिक एंड यू आर सेइंग आई गिव 2 स्टार रेटिंग, एंड यू आर सेइंग आई गिव दिस मूवी 3 स्टार रेटिंग, एंड देन similarly it is completely a procedural nature. तुम, there must be a procedure, ठीक है. और लेट्स से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डायरेक्टली यू आर सेइंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़, ये वाली मूवी बेटर है. यू आर लाइक डूइंग लाइक दिस, प्रोसीजरल इन नेचर. बट इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स व्हाट यू विल डू इज यू आर गोइंग टू कम अप विद ए उल्टा सीधा मैकेनिज्म बनाओगे मन घड़क, और उसको नाम दे दोगे न्यू नेम. ठीक है, and you will say कि I am going to use this new name as this is my method and this is going me the result, and this result you all believe. Why? Because see, what did I do? I did step 1, step 2, step 3. So this is very scientific, right? This is very very real, this is very very new, authentic. ठीक है, this is invention of the century. तो यही है, कुछ नया नहीं है. How do you do it? How do we do it? ट्रेडिशनल के अंदर फिर क्या होगा, एक और चीज़ समझो. ये दुनिया है, दिस इज़ एशिया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, इधर ले लो यूएस, ये साउथ अमेरिका,
ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान। नाउ अंडरस्टैंड भाई, ट्रेडिशनल वर्ल्ड वॉर 2 में जो मेजर आउटकम आया है वर्ल्ड वॉर 2 का, वो क्या है? मेजर आउटकम वर्ल्ड वॉर 2 का है दैट भाई कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया। एटलीस्ट मतलब स्टार्ट तो होने लग गया था डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? द वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 इज़ जस्ट वॉट इट इज़, कि भाई ये है यूरोप और ये है द किंग्स, एंड ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी। नहीं, ये नहीं, ये जापान है ना, बट जापान खुद की कॉलोनी बना लेता है, ये इकलौता है यहाँ पे मेकिंग हिज ओन कॉलोनीज हियर। सो द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू व्हाट? वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू, एक होगा राजा कॉलोनियलिज्म करने वाला, दूसरा होगा जो कॉलोनी बन जाएगा। अब इसके अंदर बेसिकली अ फ्यू आस्क फॉर बुक्स, तो बुक्स के नाम पे मिलेगा क्या? बुक्स के नाम पे यू विल गेट नथिंग। एक तो मिलेगा तुम्हें योर बुक, जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, और एक मिलेगी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यू डोंट ट्रीट द अदर पर्सन का जो भी कल्चर है, चाहे अफ्रीका का हो, युगांडा का, इंडिया का, यू थोड़ी विल कंसिडर दैट इट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। तो तुम तो अपनी ही बात करने वाले हो पूरी पूरी, चाहे प्रोसीजर हो या ना हो, राइट? इसलिए कहते हैं इसको ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्यों? ट्रेडिशनल टाइप की बातें हैं तुम्हारी, कुछ नया नहीं आएगा, तुम अपनी ही चीज़ लास्ट में बोलोगे कि माई थिंग इज़ द बेस्ट थिंग। सिंपल बात है, यू वॉन्ट अलाउ कि भाई एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करे जिसमें पैरामीटर्स हों, और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे करो। ठीक है, तो अब ये पैरामीटर्स कौन लाएगा, कैसे लाएंगे? तो ये स्टार्ट होगा विद योर डेविड ह्यूस्टन, स्पेलिंग देख लेना। नाउ व्हाट डज ही डू? सिंपल बात है, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर तुम्हें एक अप्रोच में दिख रहा है कि इट इज़ वेरी नैरो इन स्कोप। तुम्हें पता है जो भी आदमी, अगर मैं इंग्लैंड का हूँ यार, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम गोइंग टू कंपेयर मेरे वाले जगह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ब्रिटेन का विद लेट से इंडिया। तो इज़ नॉट अ कंट्री फॉर मी, तो किससे नापूंगा मैं? लेट से मैं बंगाल से नाप रहा हूँ, ठीक है, कलिंगा से नाप रहा हूँ। अरे तो ऑब्वियस है ना कि आई एम गोइंग टू बी बायस्ड। मेरा जो भी टूल मेथड स्ट्रक्चर होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ। ठीक है, अब मेरा पैरामीटर है कि कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स द बेटर इंग्लिश। तो ऑब्वियस ही बात है ना, मेरे पैरामीटर्स आर सो बायस्ड दैट यही जीत जाएंगे बार बार। सो आई विल बार बार से कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज़ द बेस्ट। ठीक है, बंगाल में कैसे बोलते हो इंग्लिश? नॉट गुड। कलिंगा में नॉट गुड। अरे तो वाई वॉज दैट पैरामीटर? बट नो बडी इज सेइंग दैट, बिकॉज मुझे तो अपना एजेंडा फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और मेरी थिंकिंग जो है, दिमाग जो है मेरा, दैट इज़ सो स्मॉल कि आई डोंट सी द बिगर पिक्चर। मुझे बस दो ही चीज़ दिखती हैं, मैं कॉलोनी है हूँ, और बाकी दुनिया इज़ अ क्या है, नॉन कॉलोनी। सॉरी, मैं नॉन कॉलोनी हूँ और बाकी दुनिया इज़ अ कॉलोनी। तो दो में बाइफरकेट कर दिया। सो वेस्टर्न पॉलिटिक्स इज़ लाइक दैट इन सम वे, दे आर वेरी क्लियर कट। ठीक है, हमेशा ये लोग ना डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट में, ब्लैक वाइट में, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं इस चीज़ में। एनी हाउ, तो डेविड ह्यूस्टन, नाउ व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू? तो भैया सिंपल बात है, एज आई सेड, ये ना करने वाला है बहुत, ये बीटेक करके आया है, ये ही इज़ अ इंजीनियर टाइप आदमी। तो ये बोलेगा कि भाई ऐसा करते हैं, इनपुट बनाते हैं, आउटपुट होगा, और एक ना फीडबैक लूप लगाएंगे। क्या मतलब है? कि बोलेंगे ये है सिस्टम, ये मैं बनाने वाला हूँ सिस्टम, दिस इज़ अ मशीन, मैजिक मशीन। और व्हाट मैजिक डज इट डू? तो मैजिक ये है कि इसके अंदर इफ़ यू गिव एन इनपुट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट। अच्छा, ठीक है, हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प? यू कैन
get your desired output. That is how you are benefiting. Make sense, make sense. And this system, let's say if this is a, यार तुम्हारी घर में फ्रिज होगा, you have air conditioner, you realize it has input. क्या है input? Input होगा उसका electricity, output क्या है? Cooling. सिंपल बात है. इफ़ यू नीड टू चेंज द कूलिंग, तो इनपुट थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अंदर बटन होते हैं, 2-3 दबा देते हो, राइट. नाउ अंडरस्टैंड. क्या ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा? विल इट स्टे फंक्शनिंग फॉर एवर एंड फॉर एवर? नो, इट नीड्स टू बी, लेट्स से कभी ख़राब होगा तो यू विल हैव टू, लेट्स से मीडिएट इन बिटवीन. अगर कभी नहीं चलेगा, यू हैव टू मीडिएट इन बिटवीन. अब कैसे पता चलेगा ख़राब हो गया? इट विल गिव यू ए सिग्नल. इट आइदर इट विल नॉट गिव यू द डिज़ायर्ड आउटपुट, कूलिंग नहीं होगी, आइदर बिल विल बी जनरेटिंग मोर देन यूजुअल. कुछ तो होगी बात. यू विल टेक दैट डेटा इन टू अकाउंट एंड यू विल कॉल द फ्रिज मैकेनिक, जो भी होता है, वो आएगा, ठीक कर देगा. एंड नाउ अगेन दिस फ्रिज इज़ फंक्शनिंग. सिमिलरली अब यहाँ पे इस मशीन में, if let's say the desired output is not coming, or let's say there is some variability in the amount of input that is going in, how is that going to balance out? तो भाई सिंपल बात है, there will be a feedback. फीडबैक लूप है. फीडबैक बेसिकली बताया जा रहा है तुम्हें कि भाई इनपुट वाले एरिया पे, आउटपुट में इफ़ देर इज़ अ कमी, इनपुट में जाके कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है जो कि बता रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है. इफ़ देर विल बी नो फीडबैक लूप, अगर तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? ये चीज़ कोलैप्स हो जाएगी. फ्रिज ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली द सिस्टम कैन कोलैप्स इफ़ फीडबैक लूप इज़ नॉट देयर. तो क्या फंक्शन कर रहा है फीडबैक लूप? फीडबैक लूप का फंक्शन ये हो रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग इन योर मेंटेनेंस ऑफ सर्व सिस्टम. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक वैसी वाली बात है. ये नई गाड़ी ली है एंड देन यू गेट कूपन्स फॉर फ्री सर्विसेज. ठीक है. नाउ लेट्स गो इन एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ द सिस्टम. तो भाई सिस्टम क्या है? लेट्स से व्हाट इन योर ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज़ द सिस्टम? तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है. लेट्स से इट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज़ अ स्टोमक, देयर इज़ एन, क्या क्या नहीं है, फूड पाइप. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स. अगर एक कार है तो कार हैज़ अ लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स, व्हील्स, इंजन, बोनट, ठीक है, क्या क्या नहीं है. उसी तरह से दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू हैव लॉट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एंड ये सारे एलिमेंट जो हैं आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स. ये जो इंटरेक्शन है, इनके पैटर्न्स को हम नाप लेंगे एंड इसके ऊपर वी आर गोइंग टू कम अप विथ थ्योरीज. एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प इन आवर पॉलिसी डायरेक्शंस, जो भी हमें देने हैं कि भैया मेरे को ये लगता है ऐसे होगा. बट वन क्वेश्चन दैट शुड बी कमिंग टू यू, ठीक है, अभी इस समय, कि करना क्यों है एंड व्हाट इज़ दिस गोइंग टू हेल्प यू विद. जो सिस्टम है ये बनाना क्यों है, ये फालतू इतनी मेहनत करनी क्यों है, इनपुट आउटपुट फीडबैक लूप, ये सब करना क्यों है? वाई डू वी नीड दिस रेफ्रिजरेटर? वाई कांट वी जस्ट ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द मटका? ठीक है, द वट एवर यू कॉल इट, घड़ा वड़ा, ठीक है. वाई कांट वी जस्ट डायरेक्टली ड्रिंक फ्रॉम दैट? वाई डू यू नीड टू हैव दैट कूल वाटर? तो भाई बहुत सिंपल बात है. हियर द आंसर इज दैट यू नीड दिस सिस्टम फॉर allocation of values, allocation of values, and not just any kind of allocation. This has to be authoritative allocation. क्या मतलब है इस बात का? भैया सिंपल बात है. लेट्स से योर मदर इज़ मेकिंग 5 समोसाज, ठीक है, एंड यू आर 3 सिबलिंग्स, 3 भाई बहन हो तुम. तो अंडरस्टैंड,
5 samosa is to be distributed into 3. Now who is going to do that? Your bhaiya mummy is going to do that, and she is saying कि भाई listen, one, 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 two more there. Whoever will be the most hungry can have half, half, half. Half will be left, and that half is for me. As simple as that. ठीक है. Now यहाँ पे but understand, instead of values what we did was a distributed authoritatively a material. Samosa is a material physical thing, right? So in, let's say, if you see in United States of America, how are things being distributed there? So there the things are being allocated, resources are being allocated on the basis of what? Very common चीज़ है, सबको पता है, market. Market is distributing the goods and services. ठीक है. Now this market principle is going to be a factor in this whole comparative politics approach in the initial period. Why? Because तब developmental या फिर let's say your human rights वाली चीज़ें ये अभी नहीं होंगी. Simple. And when we say authoritative, what do we mean? We mean exactly like mummy, who can let's say has the power to punish. Power to punish है भाई. ठीक है. If that makes any sense to you. Now then you have to understand कि चलो ठीक है, चीज़ें सिस्टम में समझ गया एक बार को. फंक्शन क्या है सिस्टम का? एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. मतलब कि हु विल गेट वॉट, ये डिसाइड करना है. हु विल गेट वॉट, ये है पर्पस, फंक्शन, सिलेबस इस सिस्टम का, और कुछ नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड, क्या यू कैन इन्फ्लुएंस दिस सिस्टम? तो ऑब्वियसली यस. देर विल बी अनदर, लेट्स से इफ देर इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो है. इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, digestive system can also get let's say affected sometime. Similarly, if this system of allocation is there, there are bound to be some subsystems, और बेहतर समझना इसको तो बोलो क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट. ऑब्वियसली बात है ना, ये इम्पैक्ट करेगा इस सिस्टम को थोड़ा बहुत. If you have, let's say, you have diarrhea, your digestive system is not doing good, obviously बात है ना, you can have, let's say, feverish symptoms that is going to can affect your respiratory system. सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नींद आ रही है, एंडोक्राइन सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो द सिस्टम्स हैव इंटरलिंकेजेस, वो देख लिया. और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम कि पता कैसे चलेगा कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. डू यू थिंक देर इज़ एनी पार्ट विच इज़ कॉमन इन, क्या लंग आता है यहाँ पे? लंग यहाँ नहीं है, लंग यहाँ पे है. क्या स्टमक आता है यहाँ पे? नहीं, स्टमक यहाँ नहीं आता, स्टमक यहाँ आता है. सो देर इज़ गोइंग टू बी सर्टेन, एक बाउंड्री होगी जहाँ पे यू कैन बाइफरकेट दीज टू सिस्टम्स. ठीक है. Now understand, इनपुट को और देख लेते हैं. दिस सिस्टम में जो इनपुट जाने हैं ना, इनपुट जो है अकॉर्डिंग टू ह्यूस्टन कितने तरीके के हो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू हिम द इनपुट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ, लेट्स से, डिमांड्स, कि भैया मुझे दे. क्योंकि काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन? एलोकेशन. एलोकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और कुछ काम नहीं है इसका, बस एलोकेशन है. कैसा एलोकेशन? ऑथोरिटेटिव एलोकेशन, मतलब विद पावर टू पनिश. सो इनपुट कैन बी डिमांड, कि भैया मुझे एलोकेट करो, या फिर होता है फिलॉन्थ्रोपिक सपोर्ट, कि चलो मैं मदद सहायता करता हूँ, मैं सहायता करता हूँ और अच्छी एलोकेशन होने में. ठीक है, लेट्स से बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये सपोर्ट में आ जाएगा.
ठीक है। अब लेट्स से ब्लैक राइट्स मूवमेंट या फिर ये लेफ्टिस्ट जितनी मूवमेंट चलती हैं तो ये डिमांड्स में आ जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मेथड्स ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ इन द डिमांड्स। तो मेथड और कैसे कैसे होंगे इसके अंदर, सो देयर विल बी लेट्स से देयर कुड बी डिमांड फॉर लेट्स से demand for participation could be there. I also need to participate. My community is not अच्छे से represented. I could say anything, right? Similarly, there could be demand for let's say regulation. ठीक है, like the coaching industry is not regulated at all. That could be regulated. ठीक है, ऐसा we can demand. Similarly, in support, how can you support? You can support obviously with resources, that is material resources. Now you can also support by, if let's say allocate कर दिया तो you have to agree also ना, चलो ठीक है you are allocating this person the value, तो okay this has to say कि okay I am fine with it. So you support with your obedience, ठीक है. Similarly, you also support with your participation. Jammu and Kashmir, what is the issue? In the elections, people were not participating at the local governance level. ठीक है, alienation was the cause, but ठीक है, anyhow, ठीक है. And the least we can do is, और कुछ भी हमें नहीं करना, the least we can do is we can give our attention at least, ठीक है. If climate change somebody is speaking about, तो भैया एक बार सुन लो क्या बात है, इतना भी मस्ती में नहीं रहना. तो ये चीज़ आई होप इज़ वेरी क्लियर. एंड फीडबैक कुछ नहीं होता, फीडबैक इज़ जस्ट तुम्हें सर्विस के लिए फिर से बुलाना है. सर्विसमैन, फ्रिज ख़राब हो गया, बट पता तब चलेगा ना अगर सही टाइम पे पता चल जाए फ्रिज ख़राब हो गया. लेट्स से योर AC इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो भैया ट्रांसफार्मर विल गेट फुक्ड. ठीक है, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा पूरा का पूरा अगर AC ऐसे ही चलता रहा. तो बेटर है कि अच्छा सा कोई रेड बटन हो, जैसे इन द कार यू सी देर आर इंडिकेटर्स, रेड लाइट इंडिकेटर्स कि भैया योर कार इंजन हैज़ सम इशू. नाउ यू इग्नोर दैट लाइट, योर कार इज़ गोइंग टू गेट डैमेज फॉर परमानेंट टाइम. ठीक है, ड्यूरेशन. तो बेटर कि भैया सिग्नल्स को देख लो और कर लो. Now this is clear. We see क्या प्रॉब्लम है अब इस अप्रोच में. ये जो सिस्टम अप्रोच है, think now that कुछ तुम्हें एक बहुत सटल प्रॉब्लम दैट इज़ क्वाइट विजिबल हियर इज, मतलब फ्रॉम नेकेड एज इफ़ यू सी दिस अप्रोच कि भाई एक मशीन बना देंगे, इसमें इनपुट आएगा आउटपुट आएगा, ठीक है, फीडबैक लूप होगा. काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ऐसे नहीं लग रहा कितना सिंपल सा है, और ऐसे ही होता तो फिर तो हो गया था सब कल्याण दुनिया का. इतना सिंपल, बस यही था, इनपुट और आउटपुट, और सही बात फीडबैक लूप. ठीक है, बट द वर्ल्ड इज़ टू कॉम्प्लेक्स, सो इज़ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना इसने बता रखा है. इसने सिंपल इसलिए कर रखा है बिकॉज इट हैज़ टेकन ओनली द वेस्टर्न वर्ल्ड इन टू अकाउंट. तो उसकी वजह से इन्होंने पूरा का पूरा वेरी जनरलाइज कर रखा है. जनरलाइज कि भाई ऐसे ही होगा, सब पे लग जाएगा. नहीं लगेगा, कैसे लग जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ यू गो एंड अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन टू योर लेट्स से कैलिफ, चलो लगा के दिखाओ एक बार, IS लेवांत पे लगा के दिखा दो. ये इनपुट आउटपुट, भैया दे रहे इनपुट के नाम पे दे रहे सपोर्ट ओबीडियंस, चलो ठीक है, मटेरियल ठीक है दे रहे हैं, ओके कूल. फीडबैक लूप तो उधर है नहीं कोई, देर इज़ नो फीडबैक लूप देयर. दिख रहा है क्या? टोटल ओबीडियंस है और यहाँ पे आउटपुट है. एंड दैट होल सिस्टम इज़ नॉट इवन गिविंग यू अ गुड इकोनॉमिक रिजल्ट और एनीथिंग. ठीक है, बट इट इज़ सेल्फ सस्टेनिंग. ठीक है, बिना फीडबैक लूप के भी. तो हाउ इज़ इट दैट यू आर सेइंग दैट भैया ये सिस्टम अप्रोच इज़ द बढ़िया, या फिर लेट्स से टू जैसे जनरलाइज करके बता दिया है कि ऐसे ही होता है. इट इज़ लाइक सेइंग कि भैया इट इज़ लाइक
यू नो हाउ गुप्ता अग्रवाल, यू जस्ट से कि अरे इनको तो दे विल डू बिजनेस ओनली. नो भाई, दैट इज़ टू जनरलाइज वाली बात है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, अब बंसल सर नेम आजकल आ रहे हैं, लगता है स्टार्टअप ही करेगा वो. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, जनरलाइज कर दिया है बहुत ज़्यादा. उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जनरलाइज कर दिया है सिस्टम अप्रोच को, जबकि ऐसा है नहीं. सो क्यों है पर ऐसा, वाई ये जो जनरलाइजेशन हो गई है, इससे हाउ आर वी गेटिंग अफेक्टेड. अंडरस्टैंड कि भैया वी स्टिल डू नॉट नो द इंट्रेंसिटीज़. हमें कोई प्रोसेस के बारे में तो अभी भी पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. एक्चुअल में मतलब what is happening, we still do not understand through this. So let's say if in India you try to apply the systems approach, आउटपुट इनपुट, इनपुट तुम्हें पता है कैसे कैसे हैं तुम्हारे, एक सपोर्ट और डिमांड वाले, और ये फीडबैक लूप चल रहा है यहाँ पे. तो क्या ये ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ कर पाएगा दिस सिस्टम, डू यू थिंक. लैंड रिफॉर्म्स was supposed to be done just after your independence. क्या कर पाए सही से, was it implementable मतलब properly. no भैया, only in certain, let's say in like Kerala it happened properly, otherwise no. तो भाई if you apply it on India, नहीं बन रहा प्रॉपर. ऑथोरिटेटिव फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन तो हुआ ही नहीं, राइट. एंड इफ द फंक्शन फॉर विच यू एग्जिस्ट, दैट इज़ अथॉरिटेटिव एलोकेशन, वो नहीं हो पा रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो दिस सिस्टम इज़ फाइन, दिस सिस्टम इज़ स्टूपिड, इट डज नॉट वर्क. एज सिंपल एज दैट. नहीं समझ में आ रही है बात. नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन टू दिस अप्रोच, सो दैट क्या होगा, अभी ना बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो गई है. ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं. वर्ल्ड इज़ टू कॉम्प्लेक्स. लाइक इतनी बड़ी वर्ल्ड है, तो इसने जो जनरलाइज करके सोच रखा है पूरी दुनिया पे लग जाएगा, नहीं लगेगा. बस इतनी कंट्रीज़ पे लग रहा है, इतनों पे नहीं लग पा रहा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज इट सो दैट ज़्यादा एरिया कवर हो जाए. एटलीस्ट यहाँ तक, अगर ये वर्ल्ड है तो इतना कम से कम कवर हो जाए एटलीस्ट. ठीक है, वी नीड टू एक्सपैंड इट्स एप्लीकेबिलिटी. तो कैसे करेंगे हम, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, लेट्स थिंक. फंक्शन क्या था, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम अप्रोच. तो द सिस्टम अप्रोच का जो नीड था वो ये था कि हम सिस्टम बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी द मम्मी, authoritative allocation of values. but this function जो है, let's say why do we need to use this function. क्योंकि understand, I told you just now that market performs certain allocative functions, right. market से तुम्हें चीज़ें मिलती हैं. कोई आईफोन लेके जाएगा, somebody will have iPhone, somebody will have Realme, somebody will have let's say Motorola. ठीक है, मार्केट डिसाइड कर रहा है किसको क्या एलोकेट होगा. जिसकी जितनी परचेजिंग कैपेसिटी होगी, ही विल हैव दैट प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट. तो लेट्स नॉट से एलोकेशन, रादर एलोकेशन की जगह ना इसको हटा देते हैं एंड से कि और क्या चीज़ है. तो इफ़ एनी थिंग हैपन्स टू मी, आई विल गो टू माई मम्मी और पापा. सिंपल बात है. तो इसका मतलब है दैट फंक्शन शुड बी सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी एज अ फंक्शन of the system, that makes sense. now does anyone has any problem, एक बार को let's say कि half samosa more you have given to this kid, other could say कि नहीं नहीं I need to have 3 और मेरे को नहीं पता बाकियों को एक एक दो. somebody can not be obedient, ठीक है, बदतमीज़ होगा कोई, but for security nobody is going to argue.
Everybody wants to be safe, and security also is not just your normal physical security, it has expanded in its scope, right? तो ऐसा नहीं है, फूड सिक्योरिटी की जब तुम बात करोगे देन इट इज़, लेट्स से तुम्हारा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी अंदर एम्बिट में आ गया, या फिर लेट्स से प्रोविजंस फॉर योर प्रोविजंस फॉर एसेंशियल गुड्स, ये भी एम्बिट में आ गया. नाउ थिंक फ्रॉम सिक्योरिटी, इफ़ वी आर सेइंग सिक्योरिटी, इफ़ वी नीड, पहली बात तो नो बडी इज़ एन आर्ग्यूमेंट कि भाई सिक्योरिटी होना चाहिए क्या फंक्शन इस सिस्टम का, तो क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सिक्योरिटी एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ, बट यूजिंग दिस सिक्योरिटी का वर्ड, इट हैज़ सो बिग स्कोप. ठीक है, इतना बड़ा स्कोप है कि फूड वूड भी आ गया तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पीडीएस, लेट्स से सिक्योरिटी ऑफ, लेट्स से माय सिक्योरिटी ऑफ माय सॉवरेनिटी, आई हैव टू नीड टू सिक्योर दैट आई एम सॉवरेन, तो भैया इसमें तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड डायरेक्शंस भी आ जाएंगे. लेट्स से सिक्योरिटी माय इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है, योर बाउंड्री प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ, इसका एम्बिट बहुत ज़्यादा है. सो दिस मेक्स बेटर सेंस. आई होप दिस मेक्स एनी सेंस टू यू. तो अभी हम चेंज क्या करने वाले हैं, हाउ आर वी गोइंग टू चेंज द सिस्टम. तो वी विल से कि this is our system, what is the function it is doing, the main function is security. why, because simple बात है ना, security का ambit is too large. इसमें food security, physical security, ठीक है, intellectual property rights भी security में आ रहा है. you are securing, और let's say securing your R&D, जितना भी तुम्हारा एफर्ट लगा है, $50 बिलियन का तुमने लेट्स से खर्च दिया फॉर रिसर्चिंग ए सीड. दिस इज़ अ वेरी हाई yielding seed. You need to secure that also. You need to secure market for this seed also. So for that you need to protect the patent for it. That also come in this. तो मतलब क्या होगा, you will make sure कि भाई streamline कर दो पूरा process. How to get a patent, you need to streamline the whole process. very very tough process होगा, then nobody will invest this any in future, कभी नहीं लगाएगा कोई. ठीक है, अब नहीं, पर हमने इसका नाम तो रखा ही नहीं. वी नीड टू गिव इट अनदर नेम. तो वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच. स्ट्रक्चरल फंक्शनल, देखो काम हम सेम कर रहे हैं, नाम बदलते जाएंगे, बस काम वही करना है. एक तरीका बनाना है कंपेयर करने का. कंपेयर करने के लिए जो पहला तरीका है कि भैया एक सिस्टम जो है वो ऐसे नाप सकते हैं कि इनपुट क्या है, उनके आउटपुट क्या है, एंड एक फीडबैक लूप. ठीक है, फिर हम बोलेंगे सिस्टम गुड है कि बैड है, या कूल है कि नॉट कूल है. बट अब क्या हो गया, एलमंड एंड पॉवेल क्या कर रहे हैं, एलमंड एंड पॉवेल पब्लिकेशन हाउस नेम है ये, ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है. ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि भाई सिंपली अंडरस्टैंड, जो पुराना वाला था ना सिस्टम, दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, कवर नहीं करता पूरा स्पेक्ट्रम. हमने अभी एक फंक्शन चेंज कर दिया है डेफिनेशन, तो इट इज़ नाउ कॉल्ड सिक्योरिटी. एंड सिक्योरिटी में एम्बिट बहुत ज़्यादा आ गया, एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच. सिंपल बात. रीज़न वाई, बिकॉज इंडिया पे लग ही नहीं पा रहा था सिस्टम अप्रोच. इंडिया पे तुम कैसे अप्लाई कर दोगे, हो ही नहीं पाएगा. ठीक है ना. तुम्हारा सिस्टम्स अप्रोच जो है ह्यूस्टन का, अगर तुम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लेट्स से द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग दिस, अगर तुम सोचो ये कौन है, ये है डेविड
ह्यूस्टन, जो भी है यार इसकी स्पेलिंग, ठीक है। अगर तुम सोचो इसके हिसाब से तो अंडरस्टैंड कि इसका दिमाग कैसे चल रहा था और क्यों सोच रहा था ये सब। थिंक अबाउट इट। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, यूएसए यूएसएसआर 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, राइट। बिहेवियरलिस्ट जो हैं, पीपल हु कॉल देम बिहेवियरलिस्ट, कुछ नहीं है, वेरी हैवी टर्म फॉर पीपल हु से कि वी आर रैशनल और लेट्स से वी बिलीव इन एम्पिरिकल एविडेंस, साइंटिफिक वेज, ठीक है। जो ये वाले लोग हैं ये बिहेवियरिस्ट हैं, तो ये भी साइंटिफिक बनने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट दिस इज़ द थिंग, बिहेवियरलिस्ट, जिसकी वजह से योर IR was also taking a major shape आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। IR का डोमेन रियलिस्ट में कन्वर्ट हो रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर अब क्या हो जाएगा, ये दो लोग आएंगे, एलमंड एंड पोवेल, और ये बोलेंगे कि भाई तेरा सिस्टम जो अप्रोच है, तू इसमें बोल रहा है कि ये सिस्टम होगा, ये मशीन है, और मशीन की वो बता दिया मैनुअल कि ऐसा चलता है, कहता है ये मशीन बेकार है। इन्होंने बोला ये मशीन हर जगह नहीं चलेगी, ये फ्रिज हर जगह ठंडा नहीं करेगा, इंडिया में तो नहीं करने वाला, इट वॉन्ट वर्क इन इंडिया। एलमंड पावेल का है ये। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू मेक सम फंडामेंटल शिफ्ट इन इट। हाउ, उन्होंने बोला कि भाई क्या करता है ये, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कर दिया ना उन्होंने तो सिस्टम का। यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस क्यों है सिस्टम की, क्या करता है ये, तो भैया ये प्रोवाइड करता है एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, एलोकेट करता है चीज़ें। ये चम्मच तेरी, ये पेंसिल तेरी, ये बैग तेरा, ये फ्रॉक मेरी, ठीक है। बट इस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो रही, मार्केट उसको हैंडल कर रही है। और ठीक है, वैल्यूज़ बोल रहा हूँ बट फिजिक मटेरियल में ही समझ लो, क्योंकि वैल्यूज़ तो कौन सी एलोकेट हो रही है, मटेरियल ही एलोकेट होता है, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि रादर देन सेइंग एलोकेशन वी विल से कि भाई फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी। मेक सेंस, बेटर है। और अगर एलोकेशन वाली बात हो तो जो तुम्हारे स्टेट इंटरवेंशन पॉलिसीज़ हैं, सोच के देखना। अब स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट जब इंटरवीन करेगा इन द मार्केट, और लेट्स से PDS का एग्जांपल लेके देखो, मार्केट यार हमने उगाया, तुमने ले लिया, तुमने फिर वो फ्री में बांट दिया, दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो स्टेट कर रहा है किस बेसिस पे आएगा, सिक्योरिटी के बेसिस पे, बिकॉज सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा कर दोगे तुम, और बोलोगे फूड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करके, राइट। अभी तक आई होप कि इट इज़ क्लियर। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्टैटिक है, जो रोल है काफ़ी स्टैटिक है, और बहुत एक ये होता है घोड़ा, और घोड़ा होता है इट विल गो इन नाक की सीध। तो इट इज़ लाइक दैट, स्टैटिक बना लिया पूरा का पूरा, और ऐसे ही रहेगा जैसे जीवन भर, और यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। प्लस जो है, अगर तुम सोच के देखो, इसको बार बार फीडबैक लूप देना है, मतलब स्ट्रक्चर में इसमें ये बार बार फीडबैक लूप है, मतलब ये सेल्फ सस्टेन है ही नहीं। इसको अगर फीडबैक लूप तोड़ दोगे बार बार कोलैप्स होगा, कोलैप्स होगा मतलब बार बार रेवोल्यूशन होंगे अंदर, ठीक है। ये तो बहुत ही बोरिंग चीज़ है, फालतू की। ये कैसी है सिस्टम अप्रोच, घटिया सी। तो हम क्या कर रहे हैं अब, व्हाट आर वी डूइंग इन सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। पहले तो फंक्शनल का नाम ही बदल दिया, फंक्शन बदल दिया। देन वी आर सेइंग कि तुम थे स्टैटिक, हमें अब डायनामिक, हम डायनामिक जो व्यू है वो ले रहे हैं पूरा दुनिया का, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू स्टडी इन 2-2, लाइक जैसे अगर 7-8 हैं, अगर ये जितने भी अप्रोचेस हैं, तो हमेशा 2-2 करके पढ़ो, बिकॉज रिमेंबर एक ही चीज़ हो रही है, देख रहे हो क्या हो रहा है, एक आएगा दूसरा बस उसको क्रिटिसाइज़ करेगा और क्लियर सही करेगा और उसका नया नाम रख देगा, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। जैसे स्टैटिक है पता है, फिर ये डायनामिक हो गया, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये पहले आया इसके बाद ये आ गया, फर्स्ट सेकंड, तो मतलब स्टैटिक डायनामिक एज सिंपल। और ये पूरे पॉलिटिकल साइंस में फॉर एवर चलेगा, फॉर एवर, ठीक है। नाउ
वाई, ये पॉवेल जो है, पर वाई विल ही से कि ये डायनामिक है? इस पर क्वेश्चन कर लो इससे. लेट्स से कि भाई पोवेल, टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू सेइंग कि यू हैव डायनामिक व्यू ऑफ दिस वट एवर यू आर सेइंग, हाँ, एंड व्हाट वाज सच प्रॉब्लम कि यू वर सेइंग कि वो स्टैटिक व्यू था? तो ये कहेगा कि भाई सुनो, लिसन, आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सोसाइटी ऑल्सो, एंड सोसाइटी जो है इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू, सोसाइटी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू what is being performed. Let's say in India, example of आप लो, तो इंडिया की टोटल सोसाइटी वॉज, let's say, segregated, divided or assembled on the basis of the work being performed, and that work being performed was the basis for whatever the caste name was allocated. वो अलग बात है, it became very very rigid and it became very very inflexible and it gave rise to lot of inequalities, continued inequalities. ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी है कि सोसाइटी का फ़र्क पड़ता है. सोसाइटी change or let's say aligns with the role that is being performed by the section of the societies. ये वेरी करेगा. लेट्स से इफ़ यू आर इन अम्बानी फैमिलीज, यू आर अम्बानीज, तो ऑब्वियस सी बात है योर वे ऑफ थिंकिंग से लेकर योर प्रायोरिटीज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ लेट्स से फार्मर्स वाइफ. पूरा का पूरा और पूरा का पूरा आउटलुक ही चेंज होगा, राइट? सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि वॉट एवर स्ट्रक्चर यू क्रिएट, बिकॉज इन स्ट्रक्चर देयर इज़ equal physical value for either you are Ambani or you are let's say farmer's wife. टेक्निकली तो दोनों के ओपिनियन 1-1 काउंट होंगे. इकोनॉमिक वेट चाहे इसका ज़्यादा हो, इन्फ्लुएंस चाहे इसका ज़्यादा हो. सो वी कैन से, कीपिंग दिस इन आवर हेड, वी कैन से कि जो इनपुट होगा, वी कैन से कि द इनपुट शुड बी 1 इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन. एज आई सेड, अम्बानी की दिक्कतें अलग हैं, अम्बानी की बीवी की, किसान की बीवी की दिक्कतें अलग हैं. यू कैन नॉट जनरलाइज एंड से कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक इनपुट में ही काम होंगे और इसका नाम होगा डिमांड. ऐसा तुम बोलोगे ही नहीं. डिमांड डिमांड बोल के इस इनपुट को इतना सिंप्लीफाइड मत करो. इसको बोलो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. व्हाट इज़ नीडेड इज़ दैट दिस पर्सन इज़ एबल टू आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का मतलब है अपने मुंह से बोलो एक बार. ये मत सोचो कि अगला समझ लेगा, दैट अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड बाय देमसेल्फ. नो, यू विल हैव टू स्पीक एंड से कि भाई लिसन, आई वांट दिस टू हैपन एंड आई नीड टू मेक श्योर कि अदर पर्सन हु इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस और हु इज़ ऑफ अथॉरिटी, ही हैज़ हर्ड योर पार्ट. Otherwise it has not been articulated. It is just interest in your head. You are just dreaming and that some good thing will happen and your demand will be given to you. No, you have to articulate it. Similarly, if you are farmer's wife, you have still no alternative. You will also have to raise your voice or whatever, and you need to make sure that the concerned authority has heard your interest. You have to articulate your interest. Now understand, this is Ambani's wife. ये तो भाई कॉल करा होम मिनिस्टर को एंड शी इज़ फाइन. इंटरेस्ट आर्टिकुलेटेड, चेक. इंटरेस्ट पे काम भी हो जाएगा, लेट्स से. बट व्हाट अबाउट दिस फार्मर्स वाइफ? ना फार्मर्स वाइफ, फर्स्ट थिंग तो भैया एक्सेस है नहीं इसके पास. देर इज़ नो एक्सेस कि शी विल बी एबल टू कॉल समबडी और नॉट ऑफ दैट मच रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस. तो एंड ये इसका जो लेवल ऑफ वॉइस है कि कितनी वेट है इसकी वॉइस में, इट इज़ नॉट दैट मच. ठीक है, कोई नहीं सुनना चाहता भाई, इग्नोर मार देंगे. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड हैपन इज़
she should go for interest aggregation. Aggregation मतलब let's say Uber. What is Uber? कि भैया if lot of people, there are lot of people who want to travel from A to B. Uber just has the list of all the people who want to travel from A to B. At the same time, Uber also has the list of people who are wanting to drive from A to B. Uber is doing what? Nothing. ये बीच का बिच्छू, ठीक है. It is just broker and they are getting matched. Ride allocated with the driver, as simple as that. ये काम कर रहा है. Similarly interest aggregation. अच्छा you also want canal. अच्छा you also want LPG. अच्छा you also want LPG. अच्छा you also want LPG. Cool. So many. Okay, I will make sure that your voice has is put forward. ठीक है. What can I be? I could be some NGO. मैं NGO हो सकता हूँ. या फिर let's say I could be a big person. Let's say मैं नीता अंबानी खुद हो सकती हूँ. ठीक है. Like I am raising the voice of the poor women, farmers. और लेट्स से आई कुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी का भी मेन रोल अगर टेक्निकली देखो इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट एग्रीगेशन. ठीक है. लाइक लेट्स से इफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू थिंक क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस? भैया देयर वर ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल. ठीक है. इंडिगो रेवोल्यूशन, ये अलाना फलाना लो. ठीक है. missionary activities were going on, etc. Some kind of channeling was absent, because of which revolts and frequent clashes would keep on occurring. So bhaiya, this was doing a good role in interest aggregation. ठीक है. It later turned out that bhaiya it converted into a freedom movement, national movement, and it led to the, let's say, bifurcation of our state and creation of India and Pakistan. But anyway, so I hope this thing is clear. The input for the system, and let's say for the output, what were the output that were we seeing? ठीक है. तो हमें पता है हम आउटपुट कुछ भी देख सकते हैं, बट फ्रॉम आर परस्पेक्टिव भैया, हु आर वी आर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वी आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल. तो हमारा काम क्या है? वी नीड टू आइदर गिव सर्टेन, हमें तो पकना है, वी जस्ट नीड टू से समथिंग विच विल appear truth, है ना. तो what we have to do is we need to decide, we need to give a policy direction. यही तो करना है, और क्या करना है? वी नीड टू गिव ए जस्टिफिकेशन फॉर इट कि भैया थ्योरी ये कहती है तो ये करना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. So what we are going to do? We are going to use this system, input, output, this whole theory to come up with a rule, or at least I could be a bureaucrat and I might be helping a minister, so I could help him with the rule making. मैं उसे बोलूँगा कि भाई देखो ना सर, ऐसा है कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें इनपुट होते हैं, इसमें आउटपुट होते हैं. ठीक है सर. एंड सर इसमें जो आउटपुट है वो हमें ये लाना है, अगर तो हमें इनपुट के हिसाब से चलना पड़ेगा सर. एंड फॉर दैट सर we need to see the demand sir, and we need to see the interest articulated sir, and we need to see the role of जैसे NGO हो गया, पार्टीज़ हो गई सर. तो हमें सर इन पार्टीज़ और NGOs की ना सर जो ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कर रहे हैं ना सर, जैसे बरेली के सर, ठीक है, या फिर रायबरेली के सर, राजा भैया सर, राइट सर. सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये भी सही, इनको भी ले लेंगे तो वोट बैंक बन जाएगा सर. ठीक है. दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. ऑब्वियस ही बात है, नोबडी यूज दिस टोन, दिस वॉज जस्ट सार्केस्टिक, बट यही सब है, ऐसे करके बताना है. नाउ ये आइडिया इफ़ इट इज़ क्लियर, जो आउटपुट होगा, रिमेंबर वट एवर बी द आउटपुट, इट इज़ गोइंग टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ ओनली 2 or 3 थिंग्स. दैट इज़ आइदर यू विल से कि भैया आई एम गोइंग टू टेक दिस रोड. ठीक है. फॉर लेट्स से इफ़ 370
आर्टिकल 370, व्हाट वाज योर अर्लियर अप्रोच? तो भैया अर्लियर अप्रोच ये था कि अगर पाकिस्तान उधर से विल पुट प्रेशर ऑन अस, वी विल डू दिस, एंड इफ चाइना विल पुट प्रेशर फ्रॉम दैट साइड, वी विल डू दिस, एंड इफ पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट, लेट्स से go on, let's say, further stone pelting etcs, then we will use AFSPA and some certain other route like this. And if, let's say, the people there start revolting, then we will use certain measures like cutting off the internet connection or something like that. Route this, so many different routes: path 1, path 2, path 3, path 4. ठीक है. But now let's say you say कि अरे भैया I am going to हटाओ ए 370 and I am just directly rule the state from Delhi. This is route 1. क्या फ़र्क है इन दोनों बातों में? फ़र्क ये है कि this one is a decision. It is a decision. When there is a decision, it is always single. I have decided, it's done. 370 done, cleared, checked. And when we do this, we are just, let's say, MBA people, we are doing MBA वाली काम, we are doing managing कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं. ठीक है. लेट्स से योर इंडिया चाइना बॉर्डर, what do we do there? We are not going to, or let's say solving to it. No, we are not solving, and we are not even engaged in solving the crisis. What we are engaged in is managing. We need to manage the issue. We are going to manage our border issues. Similarly, these kind of issues which are not there for solving, they are there for managing. These kind of issues require not a decision. We do not require decision there. We need a policy there. Policy. And policy means कि अगर ये होगा, if and else situation. Policy मतलब if else. If this, then this. If this, then this. Else this. Simple बात है. In coding there are, जो भी कोडिंग वाला बच्चा है तो वो तो समझ लेगा, इफ़ एल्स लूप है सारे, नथिंग एल्स. इफ़ एल्स को इन कोडिंग सिंपल यू विल से स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और कुछ नहीं है यहाँ. ठीक है. नाउ one major way in which these two are going to differ a lot, your systems approach of David Houston and your तुम्हारा पवेल का structural functional approach. इसमें एक बहुत major difference in output is there, which is कि भाई you see the hint here of the separation of powers, or let's say separation of roles, clear cut boundary making of roles. Here there is rule making अलग कर दिया. तुम बनाओ भैया रूल्स. क्या रूल्स हैं? ठीक है. तुम करो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट. यू डू रूल एग्जीक्यूशन. and if you have problem with the rule or no problem with the rule, understand ना, if this is the person who is making the rule, if you go to him कि सर ये रूल था, इतना बोरिंग रूल, बेकार रूल, एंड दिस हैज़ हैपेंड, ही इज़ नॉट गोइंग टू से ना कि दैट रूल दैट ही हैज़ क्रिएटेड इज़ दैट बैड. ठीक है. द आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी इन हिज फेवर. सिमिलरली if the one who has executed that rule, if you go to him, let's say in foreigner tribunal, you can't go to foreigner tribunal and say na ki your rule is stupid. Nobody will say that. No, you can't have that declared by yourself कि हाँ we have made a stupid rule and we have executed also. कौन बोलता है भाई ऐसे? तो इसलिए there is another rule education. ठीक है. appellate board type मान लो से. सो ये स्ट्रक्चर मेक्स मोर सेंस, ज़्यादा सेंसिबल सा भी लग रहा है ना. पहले क्या था कि ये दिस इज़ वन पार्टी, यही पार्टी बोल रही है कि आइदर वी आर गोइंग टू डिसाइड, और आइदर इफ़ मैनेज करना है तो लॉट्स ऑफ वेज, एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट ए पॉलिसी. सो लेट्स नाउ थिंक इंडिया के अंदर कौन सा हो रहा है. तो इफ़ यू
थिंक अबाउट इट विच वन इज़ इंडिया, तो चाइना पहले देखते हैं। चाइना में डू यू थिंक, लेट्स से शी, तो पॉलिसी ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, मेक सेंस। इंडिया में अब देखो, सेपरेशन ऑफ रूल्स कहीं दिख रहा है? रूल कौन मेक करता है जी? मोदी। रूल कौन एग्जीक्यूट करता है जी? इफ़ इट गोज़ परफेक्ट देन मोदी, if it does not go perfect then obviously there are faults with our stars, है ना? जैसे demonetization, notes came back, so problem is with us, we the people are corrupt, right? Migrant labor if got stranded, so it is what, it is not bekar execution, more like it is state politics. State politics has is to be fault, at fault, है ना? एंड रूल एजुकेशन तो भाई ठीक है, अब क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ पे। पीएम केयर्स, you want to know how they were allocated, you can't. So you see which is more helpful in making you understand which taraf is India. So China making sense here, so is India nowadays, ठीक है? But then again, it is that nature of politics that it is dynamic in nature, it keeps on changing, shifting, right? And currently with globalization it has a, let's say there is a unanimity in whatever is going in world. So the whole world, if let's say in India you see populist politics, then it means that in the whole world you will be seeing a rise of populism, as simple as that. इसमें कुछ नया वया नहीं हो रहा है। So if this much is clear, let's try to understand another kind of machine. And we see that one was the solution one, other was refined solution one. कौन सा? अभी जो हमने देखा, सिस्टम अप्रोच एंड अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। इधर द नीड फॉर द फंक्शन इज सेड कि भैया सिक्योरिटी, और यहाँ पे नीड फॉर द फंक्शन क्यों बोला था? वो स्ट्रक्चर क्या था उसका, क्या काम है, रोल क्या है, क्यों बनाना है सिस्टम? तो भैया रोल इज़ एलोकेशन। कैसा एलोकेशन? अथॉरिटेटिव एलोकेशन। किसका एलोकेशन? वैल्यूज़ का। बट समझने के लिए मटेरियल समझा करो, बिकॉज वैल्यूज़ नहीं समझ में आता। मतलब आ जाएगा किसी को, बट सबको नहीं आएगा। सो लेट्स सी अनदर, and here we try to use a certain word that is called development, because ठीक है तुमने इंडिया पे बना दिया, ये वाला काफ़ी जनरल था, ये वाले पे चलो इंडिया ऑल्सो यू कैन यूज़, ठीक है। आर्टिकुलेट करना है नहीं करना, राइज ऑफ पार्टीज़, ये सब एक्सप्लेन हो जाएगा इससे थोड़ा बहुत। बट यार ये डेवलपमेंट इज़ अ न्यू वर्ड, ये नहीं यूज़ हो पा रही थी। सो हाउ इज़ दैट गोइंग टू कम इन आवर एनालिसिस? तो एनालिसिस करने का तरीका अब देखते हैं डेवलपमेंट को लेके। लेट्स से इंडिया एंड पाकिस्तान, एज सिंपल, छोड़ो यार सीरिया ले लो, इंडिया एंड सीरिया। नाउ थिंक वेयर पीपल इज़ मोर डेवलप, वेयर पीपल हैव मोर डेवलपमेंट। तो मैं बोलूँगा इंडिया में पीपल हैव मोर डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ का एटलीस्ट हाथ पैर तो सही हैं। सो यू विल से कि व्हाट इज़ द इशू, क्या रिसोर्सेज नहीं है? तो सीरिया हैज़ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड सीरिया इज़ बट लेट्स से डिक्टेटरशिप, बट देन अगेन सऊदी अरेबिया को लोगे तो वहाँ पे तो बहुत काफ़ी डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिकली ऑल्सो गुड है, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, वो भी तो डिक्टेटरशिप है, इट इज़ ऑल्सो डिक्टेटरशिप। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद डिक्टेटरशिप, कुछ और हो रहा है। देन लेट्स से क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? स्टेबिलिटी है,
यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है काइंड ऑफ, ठीक है। आउटसाइड तुम काफ़ी प्रॉक्सीज वॉर में यू आर इन्वॉल्व इन, बट इन इनसाइड तो नहीं इतना प्रॉब्लम। यस, थ्रेट डेफिनेटली यू हैव, threats definitely you have, and that is why you spend so much on your defense. So much you spend on defense that you are the world's largest importer of defense equipment. तो इसका मतलब सीरिया में क्या है, स्टेबिलिटी है, सीरिया में इंस्टेबिलिटी है। दैट मीन्स दिस मस्ट बी द रीज़न क्यों यही चीज़ अलग आ रही है, और इसी वजह से फिर ये आ रहा होगा आउटपुट में डिफरेंस। सही बात नहीं समझ में आएगा। तो अब आ गई है वो समझ में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बाय दैट देन इट इज़ फाइन, इफ़ नॉट देन जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन फ्रॉम दिस टाइप के हाउ आर यू मेजरिंग डेवलपमेंट, like on what grounds, to understand ke who are you, why are you reading and understanding comparative politics. Understand, I told you these are eyes. Comparative politics, these are the eyes. This is like you are earning these eyes. But why are you earning these eyes? You need these eyes so that you can analyze, huh? You can analyze and give a report and account कि भाई क्या चल रहा है, what is the difference, थोड़ा बहुत analyze कर पाओ. But understand what do you have to do with development analysis का, why, because who are you, understand, you are political scientist, you are political analyst. तुम्हारा काम क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं. यू नीड टू नॉट गो इन लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ी. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू कैन, बट फर्स्ट क्या होना चाहिए यार, पर पहली प्रायोरिटी अभी तक जो कि नहीं हुई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो तुम्हारा नाम है, एटलीस्ट वो वाली डेवलपमेंट तो पहले बताओगे. आफ्टर दैट यू कैन कीप ऑन गोइंग फॉर लेट्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अलाना डेवलपमेंट, टेक फलाना डेवलपमेंट. बेयर मिनिमम नीड तो तुम्हारी ये है दैट तुम बताओ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में. ना इसका क्या मतलब है अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट, व्हाट विल दिस मीन. सो अंडरस्टैंड, दुनिया में पढ़े लिखे लोग वेस्ट में ही तो हैं और उन्होंने ही सब कुछ बनाया है. तो अंडरस्टैंड, जब वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोलेंगे तो वो अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बातें करते हैं वो, एंड फॉर देम दैट इज़ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो कभी अगर आज से 500 साल बाद व्हेन सऊदी अरेबिया विल बी द किंग ऑफ लेट्स से पॉलिटिकल साइंस, तब होगा कुछ अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट का डेफिनेशन वगैरह, बट अभी नहीं है. अभी तो वेस्ट का बनाया हुआ है. तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का हमारा बेसिक जो एजेंडा है वो ऐसे है कि वी नो वी आर द बेस्ट, वी आर द वेस्टर्न पीपल, आवर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज़ बीन द बेस्ट, आवर पॉलिटिकल एवोल्यूशन हैज़ बीन एट क्लास. ठीक है, देयरफॉर जो हम हैं वी आर द सुपीरियर मोस्ट, एंड अंडरस्टैंड we are democratic, and whoever is democratic in the world can be like us. That should be our motto. तभी तो देखो वाई साउथ कोरिया एंड जापान से इतना वेस्ट का इंगेजमेंट है. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट वोंट मेक सेंस ना. बिकॉज व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर मार्केट, डेमोक्रेटिक मार्केट, कैपिटलिस्ट मार्केट, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है. पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब बस बेसिकली एजेंडा ये है कि वी आर गोइंग टू से वेरी हैवी वर्ड्स, बट व्हाट बेसिकली वी मीन टू से इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच डेमोक्रेसी हैज़ डेवलप्ड, कितना तुम डेमोक्रेसी के नियर हो, लाइक साउथ कोरिया एंड जापान. एजेंडा समझो, द नियरर टू द डेमोक्रेसी you are, the more are the chances your market will be open. The more are the chances my Nike, my Adidas, ठीक है,
माय अलाना फलाना एप्पल ऊपल, ठीक है, सब मैं आई विल सेल। एंड ये तो चलो ठीक है, फिजिकल है, टेंजिबल चीज़ है। व्हाट इज़ द इंटेंजिबल चीज़? डेटा। ये तो अलग लेवल। द वैल्यू ऑफ दिस आई कैन ओनली टेल really in 60 to 70 years, the real value. This is just beginning. So understand, more democratic you are, more are the tendency you will be open, engaged in a market based economy. Because democracy मतलब people are the let's say sovereign. तो भाई people थोड़ी मान जाएंगे कि ओके you but you tell कि how much this phone should sell for. No, we need just articulation of our interest and aggregation, ठीक है, and we will support and give our obedience only when these interests are matched, and because we are for ourselves, therefore it is obvious that we are going to use our resources for our interest fulfillment. समझो ये बात. And because there will be an open market, understand, I, USA, can any day come and sell my stuff. I am at very high end of technology, nobody can reach me. तो जो भी चीज़ मैं मार्केट में बेचने आऊँगा वो कभी यू विल नेवर इवन रियलाइज दैट you are being used as a market, because you won't develop the product like this till 30-40 years. ठीक है, you are that back in tech. So political development approach बेसिकली डेमोक्रेसी के कितने पास एजेंडा था, समझ गए हो पूरा का पूरा. तो अब देखो क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू शो दैट दिस इज़ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच. ये मैं कैसे करूँगा? आई नीड टू शो ना, अदरवाइज पीपल वोंट बिलीव. नहीं तो एवरीबडी, वाई आई नीड टू बी साइंटिफिक? देर इज़ अ रीज़न फॉर दिस political development approach to be scientific. There is a huge need. What is that need? Understand, USA, USSR, two power blocks. And what my political development approach is basically is nothing but democracy. मैं democracy and free market इसकी बात कर रहा हूँ. Whereas the whole other block of the world, half the world, communist world, सोच के देखो, इनके लिए तो इट वोंट इवन मेक सेंस. तो दैट इज़ वाई. एंड व्हाट इफ़ आई लूज़ माई पीपल ऑल्सो, ये भी उस तरफ भाग गए तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू अश्योर कि दिस लुक्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच शुड लुक एज इफ दिस इज़ द साइंटिफिक, सो दैट जितने हैं मेरे पे अभी इस वाले मेरे ब्लॉक में वो कॉन्फिडेंट हैं, राइट. एंड आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि उनकी आइज़ जो हैं दे ऑल्सो लुक एट दिस वर्ल्ड एज द बेस्ट एंड दिस वर्ल्ड एज कि भाई ये क्या पागल लोग हैं, व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है. एंड हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस? दे आर गोइंग टू से कि भाई डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ 3 पैरामीटर, लाइक यू विल हैव टू measure it somehow. तभी तो you will say you are scientific, you have to have some empirical or behavioral. See, these 3 things mean the same: scientific, empirical, behavioral. They are all the same 3. ठीक है, empirical, behavioral, scientific. Do not get confused. So understand what they need to measure. They need to measure on 3 parameters. कैसे measure करके बताएंगे? अगर कोई बोले कि पाकिस्तान is more democratic than India, somebody needs to give reason na कि how, on what grounds he is saying Pakistan is more democratic than India. So let's make a standard for it. So we are going to make a standard for it, ठीक है. So calorie count, how much fat is there, how much protein is there, how much trans fat is there, like this, ठीक है. So you will say equality, capacity and differentiation. क्या मतलब है इस बात का? इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये 3 पैरामीटर हैं. लेट्स सी, इंडिया, पाकिस्तान
इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, नाउ लेट्स सी इक्वालिटी पे। तो हाउ डू वी चेक इक्वालिटी? लेट्स सी इन इंडिया the Jat community participates or not. तो let's say in India the Jat community participate in politics. Sure भाई, मैं तो देखता रहता हूँ. The Gujar community they also, most of the Hindus, अरे दे तो ruling वाली चीज़ चल रही है. ठीक है. There are proper SC parties, BSP, yes वो भी हैं बिल्कुल श्योर. Then is there OBC parties? तो समाजवादी बिल्कुल yes it is also there. Language based party, language based groups, communities able to articulate their interest. तो भाई बिल्कुल ऐसा है in South especially AIDMK DMK, right? And let's say what else is there? Is there a movement based party? So we have two, Indian National Congress and new, the AAP government, AAP party, so that also is there. Then do we have spectrum? On the spectrum do we have a leftist agendaist party? तो भैया CPI is there. ठीक है. And in Bengal also we see the left. Okay. And so you see on equality I see that politically if not represented, I do not I'm not going to comment on it, because representation is based constitutionally कितना किसको represent होना चाहिए नहीं होना चाहिए. At the same time, but political participation is, I will say, equal. बहुत सारा अच्छा खासा diverse portfolio है इसका political participation का. From every place, every section, I will say there is somebody there. ठीक है. Let's say in Pakistan में Hindus are there in political party, Hindu political parties, and the political participation of those Hindu parties. तो भैया नहीं तो सुना नहीं. Okay, Sikh political parties and their, let's say, power representation that they have there. तो भैया no lol. ठीक है. Then similarly lots of other stuff, and you will say कि सब पे no 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 no. Even the Ahmadiyas, so you will say those also no, they are also, even they are not considered proper pure Islam, because Pakistan is Shia. ठीक है. Now what do you say? On the basis of equality, on the basis of parameter of equality, we compared अभी इंडिया और पाकिस्तान को, and we see who is the winner. ठीक है. This is the winner, India. Now let's try to do it in capacity. So in capacity, what are we trying to understand? See, do not get confused. Do not get confused because of the word of development. Understand who you are. You are political scientist. You are a political scientist. तो अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पॉलिटिकल चीज़ फर्स्ट, बाद में कभी फ्यूचर में यू विल डू some other thing. So here political development you were talking about, nothing else, सिर्फ political development. When you are talking about equality, what kind of equality is should be the parameter for your political development? So it will be political equality. उसी तरह से when I am saying capacity, and if you know by now I think you have done GS Mill, तो भाई तो पता है that capacity is prerequisite for development. कैपेसिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट. तो इसका मतलब है वहाँ पे कैपेसिटी की बात जब JS Mill इज़ डूइंग, ही इज़ गोइंग इनटू, लेट्स से, या फिर लेमन टर्म्स में यू वांट टू गो, यू कैन से स्किल नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट. जॉब मिलेगा, पैसा आएगा, यू विल डेवलप, एज सिंपल एज दैट. यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल सेट, कोई स्किल होना चाहिए. बट when we say capacity here, we are saying again what kind of secure capacity?
political capacity. Now understand this political capacity we are not going to check at people level, we are going to check it at the state level. इंडिया एंड पाकिस्तान को कर रहे हैं हम कंपेयर. सो पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑब्वियसली बात है, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान के ये यूनाइटेड नेशन में कितना वेट है इनका. नो, वी आर गोइंग टू सी इट इज़ ऑन अ सोशोलॉजिकल स्केल. सोशोलॉजिकल स्केल मतलब होता है कि हम लोगों के लेवल पे बात कर रहे हैं, बट एट पॉलिटिकल कैपेसिटी लेवल वी आर गोइंग टू चेक कि इंडिया और पाकिस्तान, इनमें अगर लेट से इन्होंने अपना बना दिया एक लॉ, एक रूल मेकिंग कर दी, तो ये इसको तुम इंश्योर कैसे करोगे. लेट से यू हैव सेड कि भाई देयर इज़ लॉकडाउन बट एवरीबडी इज़ रोमिंग आउटसाइड ऑन रोड्स, तो भैया इन्फोर्स तो तुम कर नहीं पा रहे. ठीक है, तो ये कैसी क्या है तुम्हारी, क्या हो तुम अजीब से. ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे आर चेकिंग. इन पाकिस्तान यू हैव नो आइडिया, I do not have idea, but we can certainly say that they have better, let's say, more horrific punishments at some level, like in, not horrific, extreme. ठीक है, like BFC, Asia Bibi, but let's not go into it. In fact, instead of Pakistan, if you watch Hollywood movies or not, if USA, you will see, you will realize that they have very strict punishments. Like they will keep on adding punishment. Let's say if on a bank, in a robbery, if you have committed, let's say, how many acts of crime. Let's say number one, you entered a place forcefully, number one. Number two, then you used weapon. ठीक है. Number three, you robbed. So for every count you will be charged, like 5 years plus 10 years plus 15 years, total आया 30 years total jail. They are very very strict in enforcing these. Similarly with your traffic laws, instant they charge you. बट इंडिया यू से कि भैया इंडिया में देर इज़ नो ट्रैफिक लॉ. ठीक है, दैट इज़ इन फोर्स. ठीक है, एट द मोस्ट व्हाट यू कैन हैव इज़ 100 रुपीज़ एग्जिट फॉर एवरी थिंग दैट यू हैव. ठीक है, नो हेलमेट, नो लाइसेंस, एनी थिंग. दैट हैज़ हैपन अ लॉट एंड दैट हैज़ बिकम, लेट्स से, almost a trend, not even a. See, obviously certain amount of corruption will always be there in every society, because no society is perfect, honest, obviously, right? But still these things should be exceptions, not the rule. Unfortunately in our case we see most of the times these being enforced as rules rather than exceptions. Anyway, आइडिया तुम्हें समझ में आ गया पॉलिटिकल कैपेसिटी का किसकी बात हो रही है. क्यों? क्योंकि हु आर यू आर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंड इफ़ यू आर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर नॉट डेवलपमेंट, इट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट. हाउ डू यू लेट्स से क्वान्टिफाई, कैसे पॉलिटिकली तुम कैसे करोगे ये, अगले को कैसे बोलोगे. व्हाट आर द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, दिस इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सो यू आर गोइंग टू से इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी. क्योंकि सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन. ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिकल कैपेसिटी यू हैव टू थिंक फ्रॉम कि इज स्टेट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट. सिक्योरिटी, इज़ इट एबल टू, अगर वो पावर ऑफ पनिश नहीं इन्फोर्स कर सकता अपनी, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी. ठीक है, ये हॉब्स ने बोला था अपने लेविएथन में. सो व्हाट इज़ द हार्म इन अंडरस्टैंडिंग दिस, ये हो सकता है. देन डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स differentiations is better word would be specialization.
specialization. Let's say IAS. So what is IAS? IAS is a generalist cadre. Generalist है. They have no specialist knowledge of one subject or one area of working. No, they just know little. They are jacks of all trade वाली बात. Jack of all trade, master of none. Jack of all trades, master of none. ठीक है. But how we are going to analyze two countries on the basis of differentiation? And understand, this is not political differentiation. This is more of a functional level differentiation, or let's say specialization. ऐसे समझाऊँ यार इसको. तो ऐसे समझो कि इंडिया है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे जस्टिस की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करती है सुप्रीम कोर्ट. पाकिस्तान में कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट. बट लेट्स से what is the bottleneck in accessing this service? Let's say यहाँ पे anybody can go to Supreme Court, but in Pakistan the Supreme Court has lot of let's say broker institution to which you can only go through these broker people. ठीक है. And only if you can afford this much money, and only if you were able to, let's say, come till here, because इसके नीचे भी पुलिस वाले हैं, वो ऊपर नहीं आने देंगे. And you are here, the victim. So you understand what you are going to look at. You are going to look at the structure of this पूरा organization. तो kind of तुम कहोगे कि this one is थोड़ा functional level पे, like how specially, जैसे ISS का example लेके रखो. How functional specialization you have. How much do you have? कितना आता है तुम्हें अपना काम, उसी काम को. ठीक है. ऐसा नहीं है that you are a cook but you are a cook but you are being a chauffeur. ठीक है. Not like that. I need to know what are your skills in cooking, which restaurants you worked. need to have a complete CV regarding that. ठीक है. So I guess I will continue next time, but understand एक और चीज़. चलो छोड़ो इसको, else you will get confused. ठीक है. डेवलपमेंट ट्रैप I have to do कर लेते हैं. तो although ये हमारा although our Lucian Pi, this guy gives us only this much. जो भी अभी हमने किया, किसकी बात हुई, क्या हुई? तो टोटल बात जो हमारी हुई थी दैट वाज अबाउट डेवलपमेंट. यार क्या हो रहा है, रुको. इरिटेटिंग. तो ऑल्दो हमारा ये ल्यूशियन पाई इट्स जस्ट गिविंग अस अनदर पर्सपेक्टिव कि भाई लेट्स ट्राई टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम दीज आइज. इट इज़ हेल्पिंग अस अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्कोप. सुनो यार, ये पूरा पॉलिटिकल साइंस इज एन एवोल्यूशन. इट इज़ लाइक अ स्मॉल किड ग्रोइंग अप. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मूवीज़ जो भी चल रही हैं उस समय, जो मूवीज़ चल रही हैं, लाइक लेट्स से come imagine the whole world as this movie theater, and the movie that is running is Cold War, and there are only two powers in the whole world. One is United States of America, the other is Soviet Russia, and in it you are trying to develop and develop a career in political science. And understand this पॉलिटिकल साइंस का जो करियर है, इट इज़ ऑन अ एक्सट्रीम लो पॉइंट.
नाउ डेज एज सोशलिस्ट वगैरह ये राइज हो रहे हैं बढ़िया वाले, सोशलिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजी जो करते हैं, ठीक है। नाउ understand in this he is trying to give you a perspective कि भाई you can compare nations for your policy direction का जो भी काम है उसमें एनालिसिस में ये टूल यूज़ करो। एंड ये टूल जो है ना, ये जो मशीन है, दिस मशीन वर्क्स ऑन 3 पैरामीटर्स, इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन एंड अंडरस्टैंड दिस विल ऑलवेज गिव यू द आउटपुट और रूल। एंड अंडरस्टैंड कि ये जो रूल है ये हमेशा डेमोक्रेसी के फेवर में आएगा। यही तो पॉलिटिक्स है। मतलब तुम सोवियत हो और लेट्स से यू हैव रेड एवरीथिंग दिस, लेट्स से यू हैव रेड लुशियन पाई का पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच एंड यू आर इन सोवियत। अब सोच के देखो, तुम जैसी ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा डेमोक्रेटिक, एक आंसर आएगा डेमोक्रेटिक रूल आएगा। नो दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील कि ओ माई गॉड, मे बी socialist and Marxism was not the way, ये so democracy is the way and we should have a free market, ठीक है। तो ये need to analyze and जब फॉल हो जाएगा when let's say 1989 ये पूरा सोवियत रशिया फॉल हो गया, तो अचानक से क्या हो रहा है, थिंक अबाउट इट, everything is going to change now. There is unipolar world and we see another kind of parameter being added to it, which is political decay. या फिर तुम कह सकते हो अगर पहला वाला था डेवलपमेंट, तो पॉलिटिकल डिके क्यों होगा? इफ़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन, लेट्स से इफ़ द जस्टिस इज़ बीइंग डिलीवर्ड अच्छे से, पूरा सिस्टम है, सब लोग हैप्पी हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी, राइट, क्योंकि मुझे तो जस्टिस मिलता है टाइम पे और मुझे फूड भी मिलता है, मेरा फूड सिक्योरिटी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छे से है, तो मेरा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो और इज्जत कमा रहा है। इन JNK, लेट्स से इन जम्मू एंड कश्मीर, द पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज नॉट देयर, राइट, पीपल आर नॉट इवन गोइंग टू वोट इन योर लोकल गवर्नेंस के इलेक्शंस, पंचायत वगैरह के, तो दे डू नॉट इवन वांट योर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू स्टे देयर। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ का है बहुत एक ज़ीरो लेवल पहुँच गया है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी गुड। सो नाउ अंडरस्टैंड, इसका मतलब है द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो बॉडीज़ हैं काफ़ी जनरलिस्ट हो गई हैं, दे डू नॉट हैव द चैनल्स। ऐसा है कि ये दुकान है बट दुकान के कोई वो नहीं है, एक रीट नेटवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर्ड बढ़िया सी दुकान है जिसका पता है चैनल की, हाँ तो जाएगा ही जाएगा, मिनिमम जाएगा जाएगा। ऐसा है कि मतलब कभी चल गई, ये हाईवे की दुकान, हाईवे के पास है, दिस इज़ अ दुकान हाईवे के पास, कोई आ गई गाड़ी तो चल जाएगा, एल्स ये नहीं चलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। और ये हाईवे पे बेच रहा है भाई, ये बेच रहा है अंडरवेयर्स, ठीक है, पानी नहीं बेच रहा है, खाना नहीं बेच रहे हैं, अंडरवेयर, तो मतलब कतई ये अनोखी चीज़ बेच रहे हैं, पर चैनल नहीं है, गलत जगह बेच रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुई। सिमिलरली अगर तुम देखो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर नहीं होगी तो क्या होगा, इसका मतलब है अगर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही मतलब पीछे जा रही है, पॉलिटिकल डीके होगा, ठीक है। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या हुआ था, पॉलिटिकल डीके, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी एसोसिएट होंगे गवर्नमेंट से उनकी रिस्पेक्ट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। सिमिलरली इफ़ यू से नक्सलिज्म है इंडिया के अंदर, तो व्हाट इज़ द इशू, द लेजिटिमेसी है नहीं गवर्नमेंट की उसमें, वेदर ड्यू टू सम डॉक्ट्रिन और नॉट, यू गो टू योर नागालैंड, ठीक है, NSCN, see the issue, read about it, is this, these all come under the ambit of your political trap या फिर सॉरी political decay या development trap. Why, what you can call it also is development trap. What kind of development? Political development. Political development has been trapped, it is not moving ahead, simple बात। एंड व्हेन डज दिस हैपन, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है,
As I said, you do not need to identify it. You just take the example JNK, Naxal is Chhattisgarh, ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड. अब नाउ यू थिंक अबाउट इट एंड आइडिया इनसे ले लो. यहाँ पे ऐसा सब में क्या कॉमन है जो हुआ है कि ये चीज़ हो रही थी, पॉलिटिकल डीके या फिर डेवलपमेंट ट्रैप. पीपल वर नॉट डेवलपिंग and institutions, political institution पे there was no trust or anything. So what is the common thing that was happening? Understand क्या है? बहुत सिंपल चीज़. It is कि भाई देखो, 4 गांव वालों को तो पैसा मिल गया, 5 को मिल गया डैम का, बाकी पूरे गांव शहर बर्बाद हो गए. ये वाली चीज़ें पानी में आ गए. नागालैंड बॉर्डर बना दिया, फैमिली वाले दूर हो गए, ठीक है, बीच में. सो डू यू सी द इशू क्या हो रहा है? इट इज़ वेरी सिंपल. जो चीज़ एरिस्टोटल भी बोलता हुआ है अपने रेवोल्यूशंस, इन हिज थ्योरीज ऑफ रेवोल्यूशन, inequality. And inequality, not very crude inequality, you can say that not all dimensions, सारे डायमेंशन जो होते हैं डेवलपमेंट के, नॉट ऑल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट ग्रू इक्वली. इक्वल ग्रू नहीं हुए सारे के सारे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट. क्या क्या डेवलपमेंट के डायमेंशंस होते हैं? इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन. सही से सारे के सारे इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई, ठीक है. ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, ये क्लास तो रह गई. ये इसने पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, ये अपना इंटरेस्ट आर्टिकुलेट नहीं कर पाई, ठीक है. एग्रीगेट नहीं हुआ या फिर किसी ने एग्रीगेट नहीं किया. लेट से जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, लाइक कॉल देम हैंडीकैप्स और डिसेबल्ड, और ठीक है. सो यू डोंट सी दोज. ये तो गुड है यार आइडिया, सही बात है. ये एग्जांपल भी लिख सकते हो आप साथ में, राइट. The handicapped, the differently abled. Now these people are not very politically participating and active. Similarly, अगर capacity की बात करोगे to enforce, think about it. Are you able to enforce law in your Naxal or Bastar or Nagaland वाला region? No. Very with a lot of force you are able to, but not like without it, right? Similarly, functional specialization, you do not still have a better. Now you have in development, but initially what was the real issue? That let's say these are 100 villages हैं, ये 100 villages, and this is the district they are in. The decision for this district is going to be taken by this, let's say, CEO. This is a businessman, and this person, this is the district magistrate of this area, or let's say divisional commissioner somewhere. Understand, the decisions and rules made by these two is going to affect 100 villages, but these 100 villages can't find a proper channel through which they can articulate their interest या फिर demand or their issues. This is going to manifest into a condemnation. This is going to manifest into a hatred, or let's say hatred against the symbol of the government or society or structure, ठीक है. तो ये वाली चीज़ें हैं, ये देख लो. जब ऐसा हो जाएगा तो ये वही है, उग्रवाद स्टोरी है. तो यू नो, सो all dimensions of the development, political development, has to be developed in same proportion. तो कितने हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रख लेना. ल्यूशियन पाई के 3 पैरामीटर्स: इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन या फिर स्पेशलाइजेशन, कुछ भी बोल लो. इक्वालिटी किसकी? लोगों की पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि मतलब कैसे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं. एग्जांपल याद रखो, JNK. कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स द लॉज, ठीक है. इंडिया को तभी तो गिनती किस में होती है? सॉफ्ट स्टेट में, कि हमारे बस की नहीं है
रूल अपना इन्फोर्स करवाना. बट इन मोदी टाइम्स डू यू सी अस बीइंग ए सॉफ्ट स्टेट? नो. Almost let's say pretentious hard power or hard state. Pretentiously we are trying to look hard state, right? Now differentiation, also you see functional differentiation, that you need to have certain specialization. कितना specialized है, कितना स्पीड से कितना चल रहा है, हाउ एफिशिएंसी, ठीक है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. एंड अगर ये चीज़ सही से नहीं करोगे, तीनों की तीनों अनइक्वल करोगे, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा, कुछ ऐसा, तो क्या हो जाता है? पॉलिटिकल डिके. और यू कैन कॉल इट, ये क्या था, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. तो पॉलिटिकल डिके या फिर डेवलपमेंट ट्रैप. ड्राइव हो सकता था, बहुत सिंपल, राइट? एनीवे, चलो तो बंद करते हैं अब. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट with your political modernization, right? But I think one should go and be thorough with the ideologies, because otherwise many new people will not get appreciated what I am talking about. ठीक है, अब एसपी हंटिंगटन बोलूँगा, तुम बोलोगे कौन आ गया, तो अब दिक्कत है, बता चुका हूँ. यू हैव टू गो थ्रू मटेरियल, ठीक है, पूरा का पूरा यू हैव टू गो थ्रू द आइडियोलॉजी. आई विल ट्राई टू डू इट दिस वीक, राइट? सो चलो, बाय बाय.